Hello everyone. So this is the first part of our 75 hard day, but it's not the first day, it's the orientation part. In this orientation part, we are going to map a schedule for our next 75 days. So starting from, as we all know कि 26 मई को हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम रहेगा. उससे पहले हमारे पास कितना टाइम है? अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं मई के 25 दिन. एंड देन वी हैव कंप्लीट अप्रैल एंड 10 days ऑफ मार्च रफली. ओके, सो हमारे पास अभी भी काफ़ी 2 महीने से ज़्यादा का टाइम है. And if we are going to give our best, then we can do prelims easily. So let's come to the main part. That is, what will be our strategy? How do we divide our subjects as per a time that we have? So this is the strategy kind of video. This is not the day one. So let us just focus on the strategy, how we are going to complete the syllabus in the 75 days. And our target, as we have discussed in the earlier video, that will be focused on the CSET part. In the second part, we are focusing on GS, and the third part that is most important for us is the tests. Okay, so this will be the course structure that we have, and this will be like in the previous video we have discussed. Then how many subjects we need to cover. The first is the polity. Then we have economy. Then we are going to cover environment. Then history, then science and technology, then geography, international affairs, and the current affairs. Okay, so हमारे broadly इतने टॉपिक होते हैं, but as I've said कि हम broadly कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे. Like the static part we need to cover is of history, is of polity, economics. Adios, amigo. Powering on. History, polity, economics, science and tech, and environment, plus geography. So these are the main 6 subjects that we have that we need to cover, and we are going to make pairs of these so that we can cover multiple subjects simultaneously. Okay, so एक सब्जेक्ट हम थोड़ा इजी लेंगे, द अदर सब्जेक्ट विल बी क्वाइट मतलब थोड़ा इसका सिलेबस थोड़ा वाइड है, उस तरीके से हम करेंगे. लाइक वी आर नॉट गोइंग टू डू हिस्ट्री एंड पॉलिटी टुगेदर. Like let us start with polity. Okay, so our first will be polity plus environment. Okay, so polity with environment. The second will be economics plus science and tech. Economics and science and tech, and geography and history. Like geography is हम बोल सकते हैं जियोग्राफी हो जाता है, इट्स अ वेरी स्टेटिक पार्ट. हिस्ट्री भी थोड़ा यही रहता है, मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा फोकस रखना है, बट डुएबल होते हैं तो इन दोनों को हम साथ में कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी हमारे पास टाइम कितना है. लाइक 10 days ऑफ मार्च, देन अप्रोक्सीमेटली इज इट 30 मार्च, देन वी हैव 30 days of April and 25. All right. Then we have 30 days of April and 25 days of May. All right. So it's approximately हमारे पास अभी है काफ़ी टाइम, तो इसको हम वीक्स में डिवाइड कर सकते हैं. इफ़ नॉट वीक्स, बेटर रहेगा कि हम इसको डे के हिसाब से करें. राइट, तो 75 days तो नहीं बचे हैं क्योंकि मैंने काफ़ी पहले शुरू किया था ये 75 वाला. देर आर 65 days, बट हम 65 को 75 हार्ड की तरह लेके चलेंगे. दैट इज़ द लिस्ट दैट वी कैन डू. क्योंकि आज तारीख है, द डे आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ ऑन 15th. ओके, एंड तो उस हिसाब से 75 days थे, बट वी आर मेकिंग दिस प्लान फ्रॉम द 20th March. ओके, तो उस हिसाब से हम 65 days मान के चल रहे हैं. देन इस 65 days को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? डेली हमें कितना 2 घंटे मिनिमम दैट वी नीड टू गिव टू द सीसेट पार्ट. ओके, लाइक सीसेट का मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि सीसेट में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है. हमें मैथ्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, उसके अंदर में नंबर सिस्टम है जिसमें से मेजोरिटी क्वेश्चन आते हैं, एंड द रीजनिंग पार्ट एंड द रीडिंग कम्प्रीहेंशन. रीडिंग कम्प्रीहेंशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन रीडिंग कम्प्रीहेंशन से भी आते हैं, एंड वी जस्ट नीड टू गेट द क्वालिफाइंग मार्क्स. सो हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन और रीजनिंग
और कुछ मैथ के क्वेश्चन से भी लेके आ सकते हैं। मैथ के हर क्वेश्चन डूएबल नहीं होता है, बट वी कैन टारगेट एज मच एज क्वेश्चन वी कैन डू, but the reasoning and the reading comprehension part is very easy that we can do. Okay, so daily 2 hour minimum we will give to the CSET part, and then we जिस तरीके से हमने पेयर बनाया like polity plus environment. Okay, so we can do 2 things, like polity लिया and we completed it 7 days. ठीक, then environment लिया, we will complete environment in 3 days. Okay, and what will this include? These are your notes that you have prepared plus standard books. अब standard books कौन से पॉलिटी की, तो everyone know I am Lakshmikant. And for environment you need to do Shankar IS book. ठीक, कुछ नहीं, 300 पेज की कुछ किताबें हैं, 2 दिन में आराम से शंकर IS हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो 10 दिन के अंदर हमारा पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट विल बी completed. So the end of March we will be done with polity and the environment part, and this cycle will repeat in May too. ठीक, मई के 10 दिन दोबारा इसके ऊपर लगाने हैं। ओके, I'm not saying April, I'm saying May. ठीक, मई के 10 दिन दोबारा इसके ऊपर लगेंगे। That will be the procedure. In the next part what we are going to do, तो अगले पार्ट में बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी, कुछ ज़्यादा इतना कंफ्यूजन में नहीं लेके आ रहे। दैट इज इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा वाइड सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमें आराम से 15 डेज हम मान के चल रहे हैं। दैट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स के साथ साइंस एंड टेक है। साइंस एंड टेक भी हमारा हम बोल सकते हैं इट्स नॉट अ बिग सब्जेक्ट, बट 5 डेज हम इसके लिए कंसिडर कर रहे हैं अगर इकोनॉमिक्स से कुछ हमारा बैकलॉग रहता है। ओके, तो एंड ऑल्सो रिमेंबर इसके अंदर हम CSET के भी टाइम दे रहे हैं, इसके अंदर हम 1 दिन पूरा किसको दे रहे हैं, इसी पीरियड के अंदर सेक्शनल टेस्ट को। ठीक है, तो सेक्शनल टेस्ट को अलग से हम क्या दे रहे हैं, अपना अलग टाइम दे रहे हैं। ओके, सेक्शनल टेस्ट करने में अप्रोक्सीमेटली हमें कितना टाइम लगेगा, 4 से 5 घंटे लगेंगे। हर वीक 2 कर सकते हो, 1 कर सकते हो। ठीक, हर वीक बोल रहा हूँ मैं। ठीक, सो ये कितना हो गए, लगभग 20 दिन हो गए। ठीक, ये 20 दिन आपको मई में 10 दिन में करने। ठीक, 10 दिन के रिवीजन में, बल्कि इसको भी आप थोड़ा कम कर सकते हो। अब मई में 10 की बजाय इसको ट्राई करो कि आप 1 हफ्ते में इसको कंप्लीट ही कर दो। ठीक, द पॉलिटी एंड द एनवायरनमेंट 7 दिन इसके, 10 दिन इसके। ठीक, देन हमारा जो थर्ड पार्ट है दैट इज हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। सो let's come to the history plus geography. So history and geography, what we need to do in history and geography, हमारे पास how many days do we need to complete this? So history is also easy, geography is also easy. How many days do we have left? We have approximately 10 days. So 5 days for history and 5 days for geography. So 5 plus 5 is equal to 10 days. And what you need to do, like मैंने इकोनॉमिक्स से बताया नहीं है, मृणाल सर है, उनके नोट्स इन द साइंस टेक। साइंस एंड टेक में क्या करना आपको, साइंस एंड टेक में ज़्यादा इतना नहीं करना है। इफ़ यू हैव मेड नोट्स, रिवाइज द नोट्स प्रॉपरली, और टेक एनी बुक PT 365 एंड उसको अच्छे तरीके से आप एक तरीके से जितने भी करंट इवेंट्स रहे हैं, यू नीड टू कंप्लीट दिस साइंस एंड टेक फ्रॉम देयर। ऑल्सो लाइक आई हैव ऑल्सो सेट कि करंट अफेयर जस्ट PT 365, जो सब्जेक्ट कंप्लीट होता रहे उसी दिन आपको PT 365 कर लेना है। ओके, अगर साथ में नहीं कर पा रहे हो देन मई के अंदर आपको कर लेना। सो यहाँ तक आते आते हमारा अप्रैल खत्म हो गया। ठीक, तो मई में आ गए, मई में हमारे 7 दिन हो खत्म, यहाँ हो गए 10 दिन हो गए, 17 तारीख आ गया। ठीक, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को हम दोबारा रिवाइज करेंगे। उसके लिए हमें कितना टाइम देना है, दैट विल बी रफली लेट्स से 4 डेज। 4 डेज काफ़ी इनफ होंगे, 2 डेज ईच। ठीक, तो यहाँ तक आते आते हमारा बोल सकते हैं हम आ गए 21 मई के आसपास आ गए। ओके, तो 21 मई के आसपास क्या होगा, हमारे पेपर को सिर्फ 4 दिन बचे होंगे। तो उन 4 दिन में भी जो करना है दैट इज फर्स्ट पार्ट। लाइक हम अब 22 तारीख की बात कर रहे हैं, तो 22 अज्यूमिंग कि आप CSET साथ साथ कर रहे हो, 2 घंटे अलग से CSET के लिए निकाल रहे हो, प्लस करंट अफेयर के लिए PT 365 कर रहे हो, और सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो। ठीक, 4 डे में जो तुम्हारा 22 तारीख होगा उसके अंदर
22 को आपको 2 टेस्ट लगाने, भी आपका सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो चुका है, फुल लेंथ टेस्ट 2 लगाने हैं आपको, ठीक। इफ़ पॉसिबल 4 लगा लीजिए, 4 फुल लेंथ टेस्ट लगा के इनको अच्छे तरीके से जो आपकी मिस्टेक्स हैं उन मिस्टेक्स को यू नीड टू टैकल। एंड इन 23 एंड 24, 23 और 24 को आपको क्या करना है, यू नीड टू रिवाइज द होल पार्ट दैट वी हैव कवर्ड इन 2 days, ठीक। तो हमारा जो लास्ट डे बजेगा, आपको इतना स्ट्रेस नहीं देना है, जस्ट फोकस ऑन द सी सेट एंड डू करंट अफेयर्स। एंड अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं देन ओनली डू द शॉर्ट नोट्स। इफ शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं देन टेक रिलैक्स, दिमाग पे ज़्यादा बर्डन नहीं देना है, सी सेट करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स, वरना पिछले वाला भी नई नई चीज़ें पढ़ेंगे दैट विल बी कंफ्यूजिंग। ओके, तो सी सेट करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स, 26 को आपका एग्जाम रहेगा। सो एक ब्रॉड आउटलाइन बता दिया मैंने, एंड लेट्स कम टू द प्लानर एंड लेट्स सी कि हमारा किस तरीके से ही मैप जाएगा। राइट, सो हमारा प्लान कुछ शुरू हो रहा है तारीख नंबर 20 से, ठीक है। तो हम 20 से इसको शुरू कर रहे हैं। 20 को हमारा डे 1 हो जाएगा, पॉलिटी एंड व्हाट इज इट, पॉलिटी विद इन्वायरमेंट। ओके, तो पॉलिटी इन्वायरमेंट रहेगा फर्स्ट पार्ट, लिख ही देता हूँ कौन सा पार्ट कब तक फिनिश करना है हमें, सो दैट इट विल मेक अ डेडलाइन फॉर यू। ऑलराइट, सो हमारा प्लान शुरू हो रहा है एंड मेक श्योर अभी जो लिखूंगा उसका स्क्रीनशॉट यू शुड टेक। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आवर प्लान फ्रॉम 20 March। ओके, सो 20 से 27 March what we are going to complete OET for the next 3 days, that is 27 तक हो जाएगा। तो 27 के बाद you have to do complete 30th March। 30th March तक पॉलिटी हो गया, then you have to complete the environment। ऑलराइट, तो 20 से 27 मार्च, 27 से 30 मार्च, ठीक। तो ये आपका पार्ट ए हो गया कंप्लीट। देन लेट्स कम टू द पार्ट बी। पार्ट बी में आपको क्या करना होगा, हमने आई थिंक इकोनॉमिक्स लिया था। ऑलराइट, लेट मी चेक दिस कंफर्म। यस, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक। इकोनॉमिक्स, हालांकि 15 दिन नहीं लगते हैं, बट इन 15 दिन में क्या है कि आपको सी सेट भी कवर करना है। सो उसके लिए आप यहाँ कह सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा इकोनॉमिक्स अगर आप जल्दी कर देते हैं सी सेट के लिए। ओके, तो फिर 15 अप्रैल से 20 अप्रैल इकोनॉमिक्स हो गया। तो इसमें आपको साइंस एंड टेक करना है। देन हमारे पास सी भी हो गया, तो हम पार्ट सी भी आ गए। इन द पार्ट सी में आपको क्या मिल रहा है, हम पार्ट सी में हिस्ट्री और ज्योग्राफी कर रहे थे ना, राइट, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री, वेट अ मिनट, 20 अप्रैल से 25 अप्रैल। बीस अप्रैल से 25 अप्रैल यू आर डूइंग हिस्ट्री। देन 25 अप्रैल टू 30 अप्रैल you need to cover geography। ओके, ये हमारे, मैंने एक तरीके से ब्रॉडर 6 सब्जेक्ट बता दिए। इन बिटवीन अब मैं बताता हूँ आपको क्या क्या करना है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे काफ़ी सब्जेक्ट रह गए हैं, तो उसको मैं बताता हूँ। ओके, इन दिस पीरियड यू नीड टू ऐड एंड कवर इन्वायरमेंट हो गया, तो यू नीड टू कवर इंटरनेशनल रिलेशन इन बिटवीन। एंड देखता हूँ मैं कोई और सब्जेक्ट है, गवर्नेंस वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो इफ यू नीड। हाँ, एक पार्ट जरूरी है मैपिंग का आई प्रेफर आप ये प्लेसेस इन न्यूज़ का टॉपिक होता है, प्लेसेस इन न्यूज़। ओके, वो यहाँ एडजस्ट करना है कहीं, ठीक है।
मतलब 20 से 30 अप्रैल के बीच में। देन एक पार्ट होता है पॉलिटी इन्वायरमेंट, साथ में गवर्नेंस भी कर देना इसमें। लाइक दीज आर नॉट द मेजर सब्जेक्ट, बट इनका आपको अच्छी तरीके से यू नीड टू रीड इट आउट। देन आईआर हो गया, मैपिंग हो गया हमारा, करंट अफेयर, साइंस टेन, सो एक ब्रॉडर आउटलाइन मैंने बता दी है, प्लस जो कुछ सब्जेक्ट हैं वो भी बता ही देता हूँ। लेट्स नोट PT 365 पॉलिटी इन्वायरमेंट, ये तो प्लस में करना ही है। सिमिलरली इसमें PT 365 प्लस इसमें क्लियर। तो पार्ट ए BC PT 365, PT 365, PT 365। तो एंड ऑफ अप्रैल आपका करंट अफेयर हो जाएगा। ये सब्जेक्ट अच्छे तरीके से एक बार आपके कवर हो जाएंगे। देन द CSET पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए आपको टाइम निकालना है। लेट्स कम टू द CSET पार्ट। तो इन द पार्ट A you need to do CSET, in the part B you also need to do CSET, in the part C you also need to do CSET। so हमारा ये 20 मार्च से 30 अप्रैल तक कहानी एंड हो गए, ठीक है। देन हमारा अब आता है मेन मंथ, दैट इज मई का महीना। तो मई में हमने क्या किया था, वी हैव रिपीटेटिव काइंड ऑफ थिंग। वेट, where is it? This. Okay, so in the first week it is from 1 May to 7 May. You have to repeat part A that we have done. So this is the part A. You need to repeat this within the 7 days, right? So this will be the part A that you need to repeat. Then from 7 May to 17 May, you need to do this part, that is part B. Then from 17 May to 21 May, you need to do part C. Let's say part C is completed. Then what we have, 21 May, 22 May, you can attempt full length test. In 23 and 24, you need to do part A, part B, part C. On 25, you don't need to. If you can revise this whole, but that will be a too much burden. Instead, what you can do, that as we have planned, CSET, current affair and short notes. So in 25, you can say CSET, current affair and short notes if you can. And 26 is our prelims. ओके, काफ़ी क्लियर, काफ़ी शॉर्ट तरीके से हमने ये स्ट्रेटजीज को बिल्ड किया है। मेक श्योर आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, सो दैट बार बार इसको एक बार कॉपी पे अच्छी तरीके से बना लीजिएगा कि हाउ यू नीड टू कवर दिस होल पार्ट, दैट इज पॉलिटी, इन्वायरमेंट, गवर्नेंस, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक, IR। लाइक मेन पार्ट मैंने बता दी।